So hybridization is actually the cross between two parents, and after this crossing, we have select the best parent and use the different method. There are, I think, two or three types of selection which follow the hybridization. Actually, segregating generation are grown and the pure lines are selected after the homozygosity is achieved. In our variety development program, the ultimate focus is on the homozygosity. When homozygosity is achieved up to the 99%, we declare this plant as a new variety. Like if, the first one is the selection which follow the hybridization is the pedigree selection. Selection of plants having desired combination of characters started in F2 and continue in the succeeding generation until the genetic purity is achieved. In our pedigree selection, we select the plant from the F2 generation, and selection is continue up till the genetic purity is reached. First of all, we have to cross the two varieties. Like one variety is high yielded, one variety is resistant to the water shortage, and one variety is highly yield. We cross these two varieties. In F1 generation, when we get the F1 generation, we grow the 50 to 100 F1 plants. We before harvest, we eliminate the plant that have arisen from the self pollination. In F2, we grow the 200 to 3000 F2 plants because in F2 generation there is a segregation is involved. The plants are segregated into the different categories. So far, we grow the more and more plant because we select the best and the superior plant for the combination of the traits. Then we harvest the seed separately from the each plant. After this, we grow the progeny of the selected plant and identify the superior rows. We select the harvest the 3 to 5 best plant within the rows, and normally 25 to 50 families may be retained. After harvesting the seed from different plants, in next generation F3 generation, we plant these seed, grow these seed. Each harvested selected plant seed grow in a single row. एक सिंगल रो में हर हार्वेस्टेड जो सीड होगा हर प्लांट का उनको एक सिंगल रो में लगा देंगे. मतलब कि इट्स मीन के एक प्लांट की एक रो, सेकंड प्लांट की दूसरी रो, थर्ड प्लांट की तीसरी रो. देन उन रोज में से सुपीरियर प्लांट्स को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट ईयर फिर उन 3 से 5 जो प्लांट्स उनके जो सीड्स होंगे उनको लगा लेंगे रोज में. और इसी तरह हम ऑलमोस्ट 20 टू 50 फैमिलीज को रिटेन करेंगे F2 F5 जनरेशन तक. F6 जनरेशन में वो जो फैमिलीज हैं उनको लगाएंगे और उनमें जो यूनिफॉर्म फैमिलीज होंगे उनको हार्वेस्ट करके मिक्स कर देंगे. मिक्स करने के बाद सीड को हम एक्सपेरिमेंटल प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल्स के लिए भेज देंगे. प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल्स मीन के जो साइज पे जो उस वक्त की कल्टिवेटेड वैरायटीज हैं उनसे उनको कंपेयर करके और यील्ड ट्रायल्स करके और उस वैरायटी को अप्रूवल के लिए सेंड कर देंगे. इसके मेरिट्स ये हैं कि इसमें हमारे पास एक कंप्लीट इनहेरिटेंस का नॉलेज होता है कि इस पेरेंट के अबाव अजदाद कौन थे. बिकॉज हमने हर सीट को अलग से मेंटेन किया होता है तो हम इजीली उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं. रिकवर इन ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स मींस ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स मींस के जो एक एक्सट्रीम सेग्रीगेंट्स अंदर प्रोड्यूस होते हैं F2 जनरेशंस में, हम F6 जनरेशन तक जाते हैं और उनमें से हम उन जो ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स होते हैं उनको भी हम रिकवर इसमें कर सकते हैं. अर्ली स्टेजेस पे जो हमें प्लांट पसंद नहीं आता हम उसको छोड़ देते हैं, उसको हम साथ लेकर नहीं चल रहे होते. ये भी हमारे लिए एक इसका बेनिफिट है. Multi-share record allow good overview of inheritance, more effective selection, but there are sometimes of there the demerits are present, like the labor and the time consuming procedure है, very effective with low air. अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जिनकी हेरिटेबिलिटी लो होती है, यानी वो इनहेरिटेड एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इजीली नहीं होते. यानी अगर वो F1 में नहीं हुए तो हम ये नहीं कह सकते कि वो F2 में भी इनहेरिटेड होंगे.
F1 में प्रेजेंट है तो ये जरूरी नहीं कि वो F2 में फौरन से प्रेजेंट हो या उनकी इनहेरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा हो, क्योंकि वो लो इनहेरिटेड होते हैं, वो अप टू F8 तक जाके वो इनहेरिटेड होते हैं। और अगर वही ट्रेट हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो और इनिशियल स्टेज पे ही हमसे मिस हो जाए तो ये भी हमारा इसका डीमेरिट है। इसकी एक स्कीमेटिक डायग्राम है, अगर हम उस स्कीमेटिक डायग्राम को देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो हमारे पास वैरायटीज थी, वैरायटी ए वैरायटी बी, हमने उनको क्रॉस किया, F1 जनरेशन आई। F1 जनरेशन में से हमने ऑलमोस्ट 50 टू 200 प्लांट्स को सिलेक्ट किया। 50 टू 200 प्लांट्स को इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि F1 जनरेशन में हमेशा होमोजाइगस प्लांट्स होते हैं, सभी प्लांट्स एक जैसे होते हैं। देन हमने उनको कल्टीवेट किया, सॉरी होमोजीनियस होते हैं लेकिन हेट्रोजाइगस होते हैं। F1 F2 को हमने सिलेक्ट किया, F2 में हमने ऑलमोस्ट 50 टू 200 प्लांट्स को लगाया। F2 से हमने F3 के लिए ऑलमोस्ट 2000 प्लांट्स को सिलेक्ट किया क्योंकि F2 एक हाईली सेग्रीगेटेड पॉपुलेशन होती है, उसमें हमेशा प्लांट्स जो है वो सेग्रीगेट होते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। लेट्स सपोज ये रो हमें अच्छी लगी, इस रो को हमें आगे फर्दर इससे फैमिलीज को कल्टीवेट किया, यहाँ से इस रो को सिलेक्ट ऑलमोस्ट 50 ऑलमोस्ट फैमिलीज को हमने रिटेन किया। इस फर्दर जो इनमें फैमिली ये लेट्स सपोज अच्छी थी, इसमें से 3 रोज बेस्ट थे, उनको हमने आगे फर्दर सिलेक्ट कर लिया, इसमें से 1 रो बेस्ट थी। तो अप टू F5 तक जाएंगे, फैमिलीज को सिलेक्ट करेंगे। F6 में फर्दर सीड को हम मिक्स कर देंगे जो लाइंस एक जैसा परफॉर्म कर रही होंगी। देन हम प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल्स और यील्ड ट्रायल्स की तरफ मूव करके आफ्टर यील्ड ट्रायल्स हम उसको एज अ वैरायटी डिक्लेयर कर देंगे। ये हमारा पेडिग्री सिलेक्शन मेथड था। एक्चुअली पेडिग्री मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम पेरेंट्स की बजाय ऑफ स्प्रिंग्स पे फोकस कर रहे होते हैं। पेरेंट्स ये थे, ये पेरेंट्स आए, हमने इनकी बजाय इन ऑफ स्प्रिंग्स पे बेस किया कि ऑफ स्प्रिंग्स कैसा परफॉर्म कर रहे थे। ऑफ स्प्रिंग्स में से जिस ऑफ स्प्रिंग्स ने अच्छा परफॉर्म किया उस ऑफ स्प्रिंग्स को हमने सिलेक्ट किया और देन एज अ वैरायटी उसको डिक्लेयर किया। So that's all for pedigree selection, and now we are moved towards our practical notebooks.